Good morning, students. Today we will take up this chapter, that is the problem of excess and the deficient demand and policy measures to correct them. So in this, first of all, we will know what is excess demand, कि excess demand क्या होती है और what is inflationary gap and what are the effects if the excess demand or the inflationary gap comes in the economy, तो how it affects, कि वो effect कैसे करेगी, right? Second हम इसमें पढ़ेंगे about the deficient demand. Deficient demand means कम demand, okay? और इससे क्या होता है deflationary gap और उसका effect. After that we will do the difference between the excess demand and the deficient demand. Next हम जो करेंगे, which is very important actually, the types of policy measures. Fiscal policy and the monetary policy, right? How to correct, ये दो चीज़ों से करेक्ट की जाती है जो monetary measures होते हैं, that is done by the RBI, whereas जो physical measures होते हैं that is totally done by the government of India, right? So let's take first of all the excess demand. So what do you mean by the excess demand? When an economy, excess demand, actually the word excess से हम समझ रहे होंगे, excess का मतलब ज़्यादा, मतलब कि जब डिमांड किसी इकोनॉमी में बढ़ जाए, राइट? तो व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन under the economics? So when in an economy aggregate demand is for a level of output that is more than full employment level of output, the demand is called an excess demand. उस डिमांड को हम क्या कहते हैं? excess demand कहते हैं. और जो उसके बीच का एक गैप बन जाता है डिमांड के, means the initial demand and the excess demand, that gap is called what the inflationary gap is, right? So let's see, actually it has already shown, so let me make the, as such we have already done the equilibrium level. तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? We are taking the aggregate supply, right? This is aggregate supply and this is aggregate demand, and in the last chapter we have done aggregate demand is C plus I. So हमारा जो equilibrium है, first it's struck here because AS is equals to AD, but due to increase in the investment, as such we have already done, तो aggregate demand क्या हो जाएगी? AD1 with C plus I plus change in the investment. Now what is the here? Where is the change in investment? Here. This is what? That is a change in the investment. Due to the change in the investment, due to the increase in the investment, क्योंकि यहाँ पे investment क्या हो गई? increase हो गई है. investment increase होने से क्या हुआ? जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई एंड जो न्यू इक्विलिब्रियम है इट स्ट्रक एट हियर, बट एक्चुअल में दिस इज व्हाट, ये क्या है? दिस इज व्हाट द इन्फ्लेशनरी गैप इज. दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप. जब इकोनॉमी के, क्योंकि यहाँ तक क्या है? दिस इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. एट this point there is a full employment level. It means you cannot exceed the supply. जब आप सप्लाई नहीं इंक्रीज कर सकते, एम्प्लॉयमेंट नहीं यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, तो क्या होगा? द प्राइजेस विल शूट. When the prices will shoot, so this gap is known as what? The inflationary gap, right? So let's see the definition of inflationary gap. It refers to the amount by which the actual aggregate demand exceeds the level of aggregate demand required to establish the full employment equilibrium, right? So इसका क्या मतलब हुआ कि जो इन्फ्लेशनरी गैप है, वाई इट एग्जिस्ट द इन्फ्लेशनरी गैप? विद द चेंज इन द इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट जब बढ़ जाती है उससे क्या होगा, विद द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज होगी है उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, जो आपका डिमांड फॉर लेबर्स है वो क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीज. डिमांड फॉर लेबर्स इंक्रीजेस मीन्स द वेजेस इंक्रीजेस. व्हेन द वेजेस इंक्रीजेस it means the demand increases. Demand for the product increases when the wages increases. Wage increase हो जाएगा. क्यों increase हो जाएंगे wages? क्योंकि we are already at the full employment level. जो full employment level है तो वो इंक्रीज वेजेस पे डिमांड करेंगे. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ इट अफेक्ट्स, कि कैसे वो अफेक्ट करेगा इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड. सबसे पहले इट कॉजेज अ कंटिन्यूस, मायरा प्लीज एंड राइज इन द प्राइसेस. ऑब्वियस है, सप्लाई नहीं बढ़ेगी, डिमांड बढ़ रही है तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे. और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे क्योंकि वो उसी रेट की चीज़ें जो उन्होंने कम रेट पे खरीदी हुई थी वो उन्हें राइज मतलब बढ़ी हुई प्राइजेस पर उनको बेचेंगे. कंज्यूमर क्या होंगे, दे आर द लूजर्स. व्हाई? बिकॉज देयर परचेजिंग पावर्स गोज डाउन with the increase in the prices. और इसका रिजल्ट क्या होगा, वेज प्राइस स्पाइरल. वेज प्राइस स्पाइरल क्या होता है, when there is a rise in prices, rise prices होंगे implies the real wages to fall. real wages जो हैंड में होता है पैसा वो क्या होगा, कम हो जाएगा. कैसे कम हो जाएगा, जैसे पहले 100 रुपीज़ दे हैव टू स्पेंड, 100 रुपीज़ से वो 5 यूनिट्स किसी चीज़ की ला रहा है, लेकिन वही 5 यूनिट्स अगर उसकी डबल प्राइजेस पे मिलेंगी तो अब वो 5 यूनिट्स की जगह सिर्फ 2 यूनिट्स ही घर पर लेकर आएगा. सो इट मीन्स व्हाट, इट विल फॉल. सो द यूनियन क्या करेगी, डिमांड करेगी हायर वेजेस का. हायर वेजेस से क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्या होगा, अगेन देयर विल बी लेड इन द राइज इन द प्राइसेस, राइट. नेक्स्ट इट विल लेड टू द इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट. लेकिन जब ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो इसलिए कोई भी देयर वुड बी नो चेंज इन द एम्प्लॉयमेंट. इफ देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज, तो वो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा. बट इफ द रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड देन दे विल बी फुली एम्प्लॉयड एंड प्रोडक्शन विल इंक्रीज. तब प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है, अदरवाइज देयर वुड बी नो चांसेस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. नेक्स्ट इट लीड्स टू द प्रॉस्पेरिटी और द बूम कंडीशंस इन द इकोनॉमी, इन द ट्रेड साइकिल, राइट. ये तो था हमारा इन्फ्लेशनरी गैप. सेम इट इज विद द डिफ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट डिमांड. डेफिशिएंट मीन्स कम, जब एक्चुअल डिमांड जो है वो उससे कम हो रही है, दैट इज नोन एज व्हाट द डेफिशिएंट डिमांड इज. लाइक इफ एग्रीगेट डिमांड इज फॉर अ लेवल ऑफ आउटपुट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट level, then a situation of deficient demand exists and the gap is actually called the deflationary gap. और deflationary gap कैसे बनेगा, the same I have done. AS बनाएंगे हम, that is the aggregate supply and this is what the aggregate demand and this is what the aggregate demand 1, which is actually C plus I plus change in the investment, and this is the decrease in the investment. When there is a decrease in the investment, so this is what the deflationary gap is. This deflationary gap से क्या होगा, prices decrease हो जाएंगी. आपकी डिमांड कम हो रही है, सप्लाई इतनी है, this is the supply and demand is less, so what will happen, the prices will fall, right? So let's do the deflationary gap is difference between the level of aggregate demand required to establish the full employment equilibrium and the actual level of aggregate demand. Now how it affects the economy, कैसे economy को ये there is a fall in the general price level. general price level क्या होगा, कम हो जाएगा. the producers incur losses, their profits are nil.
कंज्यूमर आर द गेनर्स, फॉल इन द लेवल ऑफ द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम भी कम होगी क्योंकि डिमांड नहीं हो रही है, फॉल इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज कम हो जाएंगी, इफ देर इज ओलिगोपोली इन द इकोनॉमी द प्राइस ऑफ द कमोडिटी remains the same but the level of production will decline, and this led to the recession and depression in the trade cycle, right? So next comes the difference between the excess demand and deficient demand, right? So क्या इनमें फर्क है? So it is a situation when aggregate demand is more than aggregate supply. यहाँ पे क्या है? Aggregate demand is less than aggregate supply. यहाँ पे क्या है? Aggregate demand rises and AD curve shifts up. यहाँ पे क्या हो रहा है? It falls and वो shifts downwards. Inflationary gap होता है, यहाँ deflationary gap होता है. यहाँ excess demand explains inflation. यहाँ पे क्या होता है? डिफ्लेशन होता है. अब इसके इफेक्ट्स में क्या होता है? कंटिन्यूस एंड परसिस्टेंस राइज इन प्राइसेस, फॉल इन द प्राइसेस, प्रोड्यूसर्स गेट एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, यहाँ पे प्रॉफिट्स निल्स रहेंगे, कंज्यूमर्स आर लूजर्स, यहाँ कंज्यूमर्स आर गेनर्स रहेंगे, फॉल इन द नेशनल इनकम, यहाँ पे क्या होगा? रियल वेजेस विल फॉल, नो चेंज इन द एम्प्लॉयमेंट, फॉल इन द एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे क्या होगा? राइज इन द आउटपुट, फॉल इन द आउटपुट, इट लीड्स टू द प्रॉस्पेरिटी एंड इट लीड्स टू द ग्लूम डिप्रेशन कंडीशन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सेस डिमांड एंड द डिफिशिएंट डिमांड. अब अगर सपोज देयर इज एन इन्फ्लेशनरी or in excess demand or deflation demand arises in any economy, what are the measures that has to be taken, the types of policy measures की policy measures किस तरह के होते हैं? इसमें दो policies होती हैं. one is the fiscal policy, that is the government spending पे आती है. second is the monetary policy जिस पे हम credit and all चीज़ों को देखते हैं. जो fiscal policy होती है that is the policy concerning taxation and expenditure of the government, means change in taxes. अगर inflation है, suppose I will let you know afterwards, right? Change in the government expenditure को कम या बढ़ाया जा सकता है. same way the change in the taxes को कम या ज़्यादा किया जाता है. whereas in the monetary policy that is already done under the money and banking unit, quantitative and qualitative measures लिए जाते हैं. अब now comes to the monetary measure first. Here we have to control the money supply. Either we have to increase the money supply or we have to decrease the money supply through two methods. One is the quantitative method and second is the qualitative method. Bank rate policy, open market, and the reserve ratios, that is the cash reserve ratio and statutory liquidity ratio, and here marginal requirements and the moral suasion. So bank rate policy है, RBI क्या करेगा? या तो अगर देर इज़ एन एक्सेस डिमांड इन द मार्केट, अगर डिमांड एक्सेस है तो जो बैंक रेट होंगे वो क्या होंगे? दैट विल बी इंक्रीजेस. जब बैंक रेट इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या करेंगे लोग? दे विल डिस्करेज पीपल टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक्स. वो बैंक से पैसा नहीं उठाएंगे, लोन पे ज़्यादा नहीं लेंगे, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो लोगों के हाथ में उसके बाद क्या होगा? मनी सप्लाई विल बी लेस, राइट? ये हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम कर रहे हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट आता है इफ़ डिफ्लेशन है. अगर डिफ्लेशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो क्या किया जाएगा? जो बैंक रेट है वो डिक्रीज कर दिया जाएगा और उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ाया जाएगा. ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग. इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, आरबीआई क्या करेगा? सेल्स इट्स एलिजिबल सिक्योरिटी इन पोजीशन टू कमर्शियल बैंक्स. जो कैश है उसे ब्लॉक कर देगा और उससे क्या होगा? लोन्स विल बी रिड्यूस. और इसके वाइस वर्सा होगा इफ देयर आर डेफिशिएंसी, कि वो खरीदेगा आरबीआई, तो उससे क्या होगा? ऑब्वियस है, लोन्स विल बी इंक्रीज. नेक्स्ट आता है कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी की लिक्विडिटी रेशियो. सीआरआर एंड एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा. जब सीआरआर और एसएलआर बढ़ जाएंगे, द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स बाय द कमर्शियल बैंक्स विल बी लेस.
सो उससे क्या होगा, इट विल बी लेस. इन क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होगा, फर्स्ट आएगा आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट. मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स में क्या होगा, सिक्योरिटीज़ एंड अमाउंट, जो भी सिचुएशन होगी मार्जिनल रिक्वायरमेंट को यूसेस किया जाएगा. मॉरल सिचुएशन में भी यही किया जाएगा कि लोगों को पैसा ना दिया जाए एंड एक्स्ट्रा और उनके ऊपर रोका जाए कि किस किस तरह से हम उनको दे सकते हैं. एंड नेक्स्ट आता है फिजिकल मेजर, ये है, और रिड्यूस बजट्स, राइट. इसमें दो पॉलिसीज आती हैं, वन इज़ योर रेवेन्यू पॉलिसी एंड सेकेंड इज़ द एक्सपेंडिचर पॉलिसी. जो रेवेन्यू पॉलिसी होती है दैट इज़ द थ्रू टैक्सेस, राइट. अगर एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इट रेजेस ऑल द टैक्सेस स्पेशली फॉर द रिच पीपल्स. उससे क्या होगा, दिस रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर. परचेजिंग पावर उनके पास कम हो जाएगी एंड द डिमांड विल बी लेस इन द मार्केट. वेयर एज अगर देर इज़ अ डिफिशिएंट डिमांड तो वो टैक्सेस को कम कर देगा, सो द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल विल increase. The next है expenditure policy. Expenditure policy means the public expenditure. Public expenditure में सब बहुत कुछ आ जाता है, डिफेंस आता है, सोशल सर्विसेज आती हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आता है, एंड गवर्नमेंट का अपना जो एक्सपेंडिचर होता है उसको क्या कर देती है, वो रिड्यूस कर देती है. व्हेन इट रिड्यूसेस तो गवर्नमेंट के पास क्या हो जाएगा, इट विल हैव द मोर, इसके ऊपर कम कर दिया जाएगा पैसा. रिड्यूस एक्सपेंडिचर, तो उससे क्या होगा, फॉल इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी इक्वल टू द इन्फ्लेशनरी गैप, इक्वल हो जाएगा. नेक्स्ट आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है, एक्सेस डिमांड को ख़त्म करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग दी जाती है, सो दैट प्रिंटिंग ऑफ न्यू नोट्स ब्रिंग द एक्सेस डिमांड डाउन, वो डिमांड को कम कर देता है. अब क्या है, डेफिशिएंट डिमांड, वो हमने किया था व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द डिमांड. अब अगेन बैंक रेट पॉलिसी मैंने साथ में ओपन मार्केट ऑपरेशन बैंक रेट पॉलिसीज बता दिया था, कैश रिजर्व भी, फिजिकल मेजर में रेवेन्यू एंड ये भी बता दिया था. अब नाउ देयर इज अ कंपैरिजन कि कैसे होता है, हाउ टू करेक्ट डिफरेंस बिटवीन, दैट इज अ मॉनेटरी मेजर्स. बैंक रेट क्या होते हैं, रेज कर दिए जाते हैं, वेयर इज डिफिशिएंट डिमांड में रिड्यूस कर दिए जाते हैं. सब कुछ इसका उल्टा होगा. इसमें मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई सेल्स करता है और यहाँ पे क्या करता है, इट्स बायस. यहाँ पे सीआरआर एंड एसएलआर रेज किया जाता है, यहाँ रिड्यूस किया जाता है. मार्जिनल रिक्वायरमेंट इंक्रीज किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है. यहाँ पे जो क्रेडिट ग्रांट किए जाते हैं इंक्रीज किए जाते हैं, वहाँ पे कम किए जाते हैं. फिजिकल पॉलिसी में जो रेवेन्यू है, टैक्सेस इंक्रीज किए जाते हैं, टैक्सेस कम किए जाते हैं. एक्सपेंडिचर कम किया जाता है, यहाँ इंक्रीज किया जाता है. Right, so this is the difference between the excess measures to correct the excess demand and to correct the deficient demand. So here we complete this chapter and kindly do the question and answers in your notebook. Thank you.